अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी मिधत एज ए को एंकर ऑफ शेयर्ड पेन ऑफिशियल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। वेल, एज वी नो दैट शेयर्ड पेन ऑफिशियल always come up with something fructiferous, and today, for giving us a clearer synopsis about the social evils and the role of youth in controlling it, we are having Muntaha Shah ma'am over here. She is the resident of Srinagar, Kashmir. She is pursuing MBA from the Central University of Kashmir. I could say that she is a multifaceted human. Well, she is a calligraphy artist and a writer also, and she has published some anthologies. Ma'am, I welcome you on the behalf of Sheerton Official. Thank you so much for having me here. Yes, ma'am. Ma'am, what is social evil and what you have perceived it from your sense? Let me say, before touching this topic, हम लोग को पहले ये जानना जरूरी है कि सोसाइटी में किस तरीके के evils already रह चुके हैं, मौजूद हैं. Let me say, जैसे female suicides हैं, corruption है और dowry है, इन्हें हम लोग सोशल इवल्स कह सकते हैं. सो राइट, लेट मी से इन द प्रेजेंट डे सिनेरियोस द वर्ल्ड हैज बिकम अ वोलेटाइल प्लेस टू लिव इन, राइट? एंड टुडे वी लिव इन अ वर्ल्ड वेयर वी आर सराउंडेड बाय मोर इवल देन गुड, be in terms of social evils or in evil people, and in such perilous times it becomes quite important that we turn to the most efficient population of the world, and that is youth, for eradicating evil from the society. Exactly. So, ma'am, we people believe in the concept of meliorism. What do you think about it? Are we doing so? Meliorism का, should I say, let me before touching that topic, जो टॉपिक हम लोगों ने पॉडकास्ट के लिए चूज किया है, तो बहुत से लोगों का अभी यही जहन में सवाल पैदा होते हैं that why are we having such responsibilities on the shoulder of our youth, why are we not targeting the other age groups, right? So before touching this topic, there's a saying that we cannot always build the future for our youth, but we can build our youth for the future. Exactly. And putting this statement in simpler terms, the youth we have today will be working force, right? It can be the GDP gross right now. मतलब मैं जिस फील्ड में काम कर रही हूँ, तो अभी यहाँ पे GDP हम लोग मतलब डे टू डे लाइफ में हम लोग सुनते हैं. So the youth can be the builders of the nation, and it becomes quite essential to acknowledge their importance in solving problems. Okay, and what should I say? Like breaking down the rise and expansion of an evil in the society, it happens in various stages. That is, first a few stereotypical, narrow-minded minds start practicing it, and as a result of lack of knowledge and ignorance, people are often manipulated, and thus the evil flourishes and expands to deeper roots in the society. But what if an obstacle, a dam, or obstruction is put right before it expands? What if people who are too easily influenced and moved are replaced by rational thinkers and educated people? That is the young generation, the youth. The result would be quite surprising to note, and may result in the extension of all the evils from the society. And since there has been a lot of stress on the education, awareness and development of youth, it is important to note that education doesn't necessarily mean formal education. That means the one that is taught in schools or universities, but also informal education. Matlab, the need of the hour is that we, along with the vast technological knowledge, have even stronger foundation of value, which keep our ideals strong, and our mind should be so well bounded
with rational thinking, that it is barely influenced by terrorizing and stereotypical thoughts. बिल्कुल मैम, we see that people being educated and are boosted with autonomy are still residing in slumber and are overlooking such issues. What do you think about it? Yeah, that's what I was trying to say, that stereotypical thoughts se hota hai, that don't mean that hum log ko, that our rich culture values and principles that run through the blood and define who we are, but I target all the shrewd minds who manipulate the masses to their own gain. Like जैसे मैंने पहले जिक्र किया that वो मसाइल जैसे डाउरी है, फीमेल फीटिसाइड्स है, करप्शन है, they are a direct cause of some ignorant minds in the transition of their passing in the hierarchy among ages, right? And this can be easily understood by the fact that sexual discrimination is caused due to the people believing in a common myth that women are, weaker sex or are poor decision makers because of their menstrual cycles, like so-called menstrual cycles. I mean, how absurd reason is that? And now imagine if a knowledgeable person has ended this belief ages ago. अगर यही एक बेहतर ज़हनियत रखने वाले इंसान ने अगर ये ऐसी थिंकिंग को इरेडिकेट किया होता कुछ सालों पहले, तो we no longer would have had this problem, and similarly the other problems could also be resolved. बिल्कुल मैम, here we are seeing that literacy rate among females, that's also in decrease as compared to with the men in the society. Yeah. And women are not provided with the education. Exactly. ये तो मतलब बहुत पहले से वो कहते हैं ना, एक रिचुअल चलता आ रहा था, that people used to say that one cup to इमज़ाद परुलेखुन, at the end इसको किचन संभालना है, किचन ही संभालना है. In fact, some of my own schoolmates, मतलब जो बिल्कुल मेरे ही एज बार से हैं, some of them either they are engaged or some of them are married, and some of them even have kids. And when we come together and we talk about our, क्या कर रहे हो आजकल and all, and when I tell them that right now I'm pursuing MBA, वो मुझसे कहते हैं that dude, कितना पढ़ना है तुझे यार, इसके आगे भी कितना पढ़ना है. In fact, मुझे बाकियों के घरों का नहीं पता है, लेकिन मैं ओवरऑल जहाँ तक मेरे सुनने में आया, जहाँ तक मेरा मतलब जितना मैं एक्सपीरियंस करती हूँ डे टू डे लाइफ में, वो मैं यही करती हूँ that अभी भी इतना, मतलब हम लोग एक 21st सेंचुरी में है, टेक्नोलॉजिकल एज है, मतलब चांद को छोड़ दो, हम लोग मार्स पे जाने की सोच रहे हैं, बट अभी भी यहाँ पे यही थिंकिंग है दैट लड़कियों को ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग अभी ऐसे भी, कुछ फैमिलीज ऐसी भी हैं जो ये सोचती हैं दैट लड़कियों को ज्यादा पढ़ाना मतलब वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ टाइम. इनफैक्ट लेट मैरिजेस, मतलब उनका मतलब लेट मैरिजेस भी इसी की वजह से होती हैं, क्योंकि लड़कियां इतना ज्यादा पढ़ लिख जाती हैं, फिर उनको उनका बेटर मैच नहीं मिलता. और मैंने बिल्कुल इसके ऑपोजिट भी ऐसी फैमिलीज देखी है, इंक्लूडिंग माइन, अल्हम्दुलिल्लाह, दैट मतलब कहीं बैरियर नहीं है पढ़ाई में. इवन इफ इंशाल्लाह, इवन अगर फ्यूचर में आके मैंने अपने पापा से कह देना है दैट पापा आफ्टर MBA आई हैव टू परस्यू PhD, ही वुड बी लाइक ओके डन. एंड उनका माइंडसेट यही है दैट चाहे बंदी जितना भी पढ़ी लिखी हो, मतलब एंड यही मैं चाहती हूँ कि इस तरीके का माइंड सेटअप हर घर में अगर हो तो लड़कियों की एजुकेशन, उनके इंडिपेंडेंस में कोई फर्क नहीं आएगा. बिल्कुल सही. You have just hit the nail over here, ma'am. What we need to do as an individual level? It's all about, let me say that एक यंग जनरेशन को बिलोंग करने की हैसियत से, that as we all know that youth plays is a, मतलब it can play a reverse education. That means youth can help in enlightening and educating the adults.
मतलब अभी भी जब जैसे होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे ग्रैंड पेरेंट्स है और लेट मी से कुछ सालों पहले हमारे पेरेंट्स थे, दे डिडंट नो हाउ टू एक्सेस स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स और यू नो गैजेट्स वगैरह। उनको भी मतलब वही मतलब हम लोगों को वो कहते हैं ना, वो कसना होना, सो वो स्टार्स चढ़ जाते थे शोल्डर्स पे, दैट क्या कर रहे हो, मैं अपने डैड को लैपटॉप चलाना सिखा रहा हूँ, मैं अपनी मम्मा को स्मार्टफोन चलाना सिखा रही हूँ। सो उसी तरीके से अगर यूथ ही मतलब अपनी अडल्ट्स को एजुकेट करना स्टार्ट करे, उनको एनलाइटन करना स्टार्ट करे द एल्डर एज ग्रुप्स अबाउट द प्रॉब्लम्स एंड दस हेल्प इन curbing them and finally abolishing them from our society. This is what a young generation can do. मतलब हम लोग अपने adults को अभी भी, मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें अभी भी evils जो हमारी society में है उनको पता ही नहीं है। तो मन सुनो मतलब zoning that मतलब घर में हम लोग घर में बैठे हुए हैं और बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। इनफैक्ट हमारे जो पेरेंट्स है, इवन हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स, दे डोंट इवन नो व्हाट साइबर क्राइम इज। उनको पता ही नहीं है दैट हम लोग घर में बैठे बैठे कितने क्राइम्स अंजाम दे सकते हैं, हम कितने मुश्किलात का सामना कर सकते हैं विदाउट इवन डूइंग एनीथिंग। फिर अगर मतलब पहले जमाने में ऐसा था दैट उससे सुना दैट फॉलो इनको क्या चीज, उसके बाद उसकी वजह से ये चीज हुई। मतलब अभी तो ऐसी होता है विद इन मतलब फिंगर टिप्स पे प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हैं। तो ये यंग जनरेशन का फर्ज है कि वो अपने अडल्ट जनरेशन को इन सारी चीज़ों के बारे में एक तो उन्हें समझाए, उन्हें अवेयर करे और उन्हें इन सब चीज़ों के बारे में एजुकेट करे, उन्हें एनलाइटन करे। Yes, ma'am, that is the veracity to be spoken of, ma'am. Female infanticide is the practice going on in most of the states of the India, right? What do you think about it? Why is it still ensuing in India? After all, we are a developing country. Exactly. That's what I was about to say. That हमारी so called country में यहाँ पे ये नारा बहुत बुलंद है that you know बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बट यहाँ पर ये कितना बड़ा झूठ है, ये कितना बड़ा धोखा है, ये हम सबों से छुपा नहीं है। अभी भी there used to be a time where जब sex determination was on peak, मतलब सेक्स डिटर्मिनेशन की बिना पे फीमेल फीटिसाइड्स होते थे। पहले तो ये बाहर की स्टेट्स में चलता आता था, लाइक हरियाणा, मतलब हरियाणा में तो मतलब वहाँ तो फान उठाया था लोगों ने तो मतलब पहले ये वहाँ पे बहुत ज्यादा पीक पर था। फिर धीरे धीरे मतलब हम लोग की स्टेट में, हम लोगों की सोसाइटी ने भी ये चीज देखी और बहुत दुख होता है। मतलब जहाँ पे हम लोग वी कम फ्रॉम दैट सोसाइटी, हम लोग एक ऐसे रिलीजन को बिलोंग करते हैं, हम ऐसी कौम से आते हैं जहाँ पे औरतों का दर्जा सबसे बुलंद रखा गया है। औरत पे सूर्य तक नाज़िल और सूर्य तक मतलब लिखेगा, मतलब हमारी कुरान पाक में सूरा तक है। एंड ये सब चीज़ें होने के बाद भी वो सब चीज़ों को हम लोग नज़रअंदाज करके भी हम लोग ऐसी घिनौनी चीज़ों में पार्ट ले रहे हैं। एंड I can't even imagine that how can we even sleep after doing such things. मतलब और ये चीज भी बस इसी बिना पे हो रही है because people lack education. It's not about मतलब लोगों के पास डिग्रियां नहीं है या लिटरेसी रेट यहाँ पे कम है. It's not about that. It's about that यहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है that उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें क्या नहीं करना चाहिए. यहाँ पे मतलब कहते हैं ना वो ज्यादा पढ़ाई लिखाई से भी फिर इंसान जाहिलों से ज्यादा बदतर बिहेव करने लगता है और वही चीजें होती आ रही हैं. यहाँ पे लोग इतना ज्यादा पढ़ के भी जाहिलों से बदतर है, कुछ हासिल नहीं किया. Ma'am, you know what? Whenever a baby girl is born, she's being taught that be careful. One day you have to leave this house and have to go into your in-laws home. हाँ बिल्कुल. You know, instead in every religion, the status of women is exalted. But my question is why people prefer sons than daughters? Like, aren't daughters more beautiful, cute, and charming? Or why people think that men can bring up the next generation? I have already said that अगर ये basically ये अगर मैं बहुत पहले की बात करूं, ये बुनियाद ही
ऐसी रखी गई है हमारी सोसाइटी की कि उसके बाद जितनी भी जनरेशन आई उनको भी यही चीज सिखाई गई। मैंने पहले भी आपको बोला दैट अगर हम लोगों की जो फाउंडेशन होती, अगर वो एक नॉलेजेबल पर्सन में रखी होती, तो क्या होता, आगे वाली जनरेशन को भी वही सीख मिलती, वही मैसेज मिलता। राइट नाउ अगर अभी हम लोग ये बात करेंगे ना दैट अगर बच्चे को हम लोग सिखाएंगे तुम्हें पढ़ना नहीं है ज्यादा, तुम घर के काम भी सीख लो, पढ़ाई तो होती रहेगी, या फिर वो आजकल मैं ऐसा बोलूँ कि ये किसी घर में नहीं, मतलब किसी भी छोटी लड़की को, मतलब जो एक टॉडलर है उसको ये सब नहीं सिखाया जाएगा, उसके जहन में ये बात नहीं रखी जाएगी, क्योंकि अभी का माहौल ऐसा है दैट लड़का और लड़की बराबर है। अगर यही लड़का और लड़की की बराबरी की बात हमारे फोर फादर्स के टाइम से भी चली होती, उनसे पहले भी चली होती, तो शायद हम लोग सोसाइटी में ये चीज नहीं देख रहे होते। Indeed. Well, ma'am, there is another crime that is seriously pathetic, I would like to say, that is prostitution. जी. And that is still happening in India. 1.2 million children are facing such problem. I must not say that it's only happening in India. It's happening all over the world, and it's let me say ये एक इस तरीके की, ये मतलब obviously जो गंदगी है ना, वो obviously आसमान से नहीं उतरती, उसको हम लोग ही क्रिएट करते हैं। Exactly. And prostitution, and maybe it would seem a bit offensive, but मैं इन चीजों के बारे में पढ़ती हूँ, and I have a keen interest in prostitution rackets or human trafficking. मैं इन सब चीजों के बारे में पढ़ती हूँ और मेरा बहुत इंटरेस्ट है, नॉट बिकॉज मतलब मुझे एक अलग सा आई फील, मुझे एक मजा आता है सब पढ़ने में। ऑब्वियसली जितना इंसान पढ़ता है, उसके बारे में एजुकेट होता है, उतना वो आगे वाली जनरेशन को भी सिखा सकता है। लेट मी से प्रोस्टिट्यूशन एक ऐसी चीज है जो हम लोगों ने खुद से बनाई है। अगर हम लोग जो प्रोस्टिट्यूशन रैकेट्स चलाते हैं, मैक्सिमम मैं कहूँगी, मैं सबकी बात नहीं करूँगी, जो मैक्सिमम सेक्स वर्कर्स जो होते हैं, वो या तो उनकी मजदूरी का फायदा उठाया जाता है। मजबूरी का फायदा मतलब या तो वो फाइनेंशियली वो वीक होते हैं, या तो उनके घरों में कुछ दिक्कत होती है, उस हिसाब से उन मजबूरियों का फायदा उठा के उन्हें इस प्रोफेशन में आने को मजबूर किया जाता है। और फिर जब वो इस प्रोफेशन में आ जाते हैं, जैसे जैसे ही वक्त बीतता जाता है, उन्हें लगता है कि वो इस चीज से कभी बाहर नहीं आ सकते हैं, और फिर उनका ऑब्वियसली उनका जो जहन है वो इतना ज्यादा परेशान हो रखा होता है। उनको भी कुछ, ऑब्वियसली कोई भी इंसान सिर्फ साइकोलॉजिकली वो स्टेबल रहेगा नहीं, तो फिर वो खुद को फिर उसी चीज में अडेप्ट कर लेते हैं, वो चीज एक्सेप्ट कर देते हैं दैट हम अब इस चीज में फंस चुके हैं, वन हेको नेबर निरत के, एंड दैट्स इट। इसी चीज में हम लोग जी रहे हैं, इसी चीज में मरना है, एंड दैट्स इट। बट यहाँ पे एक और चीज आती है, एजुकेशन। I have been reading about some Indians who are educating the sex workers, जिनके उनके बच्चों को उनको एक नॉर्मल लाइफ देने के लिए वो इकदाम उठा रहे हैं। वो उन्हें एजुकेशन दे रहे हैं, वो उन्हें मतलब वो सेक्स वर्क की लाइफ से बिल्कुल एक हटके जिंदगी उन्हें देना चाहते हैं। वो उन्हें एजुकेशन के बारे में बताते हैं, वो उन्हें मतलब वो एक नॉर्मल लाइफ जो होती है, एक इज्जतदार जिंदगी जीने पे आमादा करते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं। एंड नॉट ओनली उनके बच्चों को, इनफैक्ट जो सेक्स वर्कर अपना प्रोस्टिट्यूशन का प्रोफेशन छोड़ना चाहता है, वो उन्हें भी कमाई का जरिया बताते हैं। जैसे सिलाई सेंटर्स हैं, वो उन्हें सिलाई सेंटर्स ओपन करके देते हैं, जो आर्ट एंड क्राफ्ट के जो चीजें हैं वो उन्हें वो मटेरियल मुहैया करते हैं, जिनसे वो मतलब खुद का रोजगार कमा सके। तो ऐसी अगर मैं इस टॉपिक पे बात करने चाहूँ तो ये बहुत लंबा खींचेगा, तो इट वाज जस्ट अ क्रक्स।
Yes, ma'am. We see dowry system, we see domestic violence, and we see many other things that are going on a larger scale, right? जी जी Ma'am, बिल्कुल dowry system, we see that in-laws are being so ostentatious, and usually women is being treated as an asset in our society, right? जी बिल्कुल. What do you think about it? Kindly just apprise us about it. Being a daughter and know how it would have been feeling for a father that जब उसके सामने डाउरी की बात रखी जाती है इट मतलब पर्सनली जब मैं दहेज की बात सुनती हूँ या फिर मैं ऐसा कोई भी चीज एक्सपीरियंस करती हूँ या मैं देखती हूँ दैट फलां ने इतना डाउरी मांगा, फलां ने ये किया, फलां ने वो किया, इट सीम्स लाइक एज उस दूल्हे पे प्राइस टैग लगा होता है. एक सीरियसली मतलब तुम अपने बेटे की बोली लगा रहे हो, मतलब तुमने उसका एक फिक्स प्राइस तुमने तय कर रखा है और बस तुम लड़की वाले से कहते हो अगर तुम्हें हमारा बेटा चाहिए तुम्हें इतना प्राइस पे करना पड़ेगा. मतलब अगर वहाँ पे भी मतलब एजुकेशन की बात ही आती है. अगर एक मतलब वेल एजुकेटेड वेल नॉलेजेबल पर्सन होगा लड़की वालों के साइड से, वो भी कल को बोल सकता है साहब किस बात के पैसे, मतलब मेरी बेटी है, मैंने उसको एजुकेशन मैंने दिया है, मैंने उसको इतनी अच्छी लाइफ स्टाइल दी है, मैंने उससे सोसाइटी में सर ऊंचा रखने का मतलब वो हर एक चीज मुहैया की है जिससे वो अपना सर ऊंचा करके जी सके. मैंने उससे इंडिपेंडेंस का हर वो तौर तरीका सिखाया है, चाहे वो फाइनेंशियल मीन्स में हो या फिर किसी और. मेरी बेटी किसी भी बात के लिए मोहताज नहीं है, फिर भी आप किस बात की डाउरी मांग रहे हैं. बेसिकली ये गलती सिर्फ लड़के वालों की नहीं होती दैट वो डाउरी डिमांड करते हैं, ये लड़की वालों की भी होती है दैट वो डाउरी देना एक्सेप्ट करते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. अगर लड़की वाले देना मना करते हैं वहां से फिर लड़के वाले भी नहीं डिमांड कर सकते हैं. तो ये टीम वर्क होता है दोनों का, और फिर बीच में दूल्हा दुल्हन पिस जाते हैं. इनफैक्ट वो भी नहीं पिसते, दुल्हन को तो बस उठ के अपने घर जाना होता है और दूल्हे को तो बैठे बिठाई कमाई मिल जाती है. वहां पे फिर सारा जो ये बोझ है वो लड़की वाले के कंधों पे आता है और लड़के वालों के सर तो गुनाह नहीं. और दहेज देना और लेना मतलब ये तो मतलब वो होता है, वो गुनाह की भागीदारी होती है फिर लड़के और लड़की वालों के बीच में. बिल्कुल मैम. इकबाल हैज स्टेटेड समथिंग लाइक वो जो जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साथ से है जिंदगी का सोज़े दरू. This is the kind of society which we want, but instead of following such path, we people are being astray. Yeah, exactly we are, and we are not even taking any steps. So मतलब हम लोग वो कोई इक़दामात नहीं ले रहे हैं कि हम लोग एक better society, एक better world build करें. Even there are laws as well which have been framed by the legislature. I don't think here like we are following such framework. So we are like, let it happen. Yeah, exactly. Let it happen. मतलब जब तक अपने घर तक बात नहीं आती ना तब तक इंसान को फर्क नहीं पड़ता. जब तक मुसीबत तुम्हारे घर पे, जब तक वही कह रही हूँ जब तक मुसीबत तुम्हारे घर का दरवाजा ना खटखटाए तब तक दुनिया को आग लगे, दुनिया भाड़ में जाए, तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा. मतलब अगर ये हर एक इंसान अपने जहन में बैठा ले कि यार मेरा घर तो है लेकिन ये दुनिया भी तो मेरा घर है, ये सोसाइटी भी तो मेरा घर है. अगर फलां के साथ गलत हो रहा है आज उसकी बारी कल को मेरे साथ भी हो सकता है, तो क्यों ना एक बेटर सोसाइटी बिल्ड की जाए, एक क्राइम फ्री सोसाइटी बिल्ड की जाए. ये चीज एक्सेप्ट करने में बहुत बहुत मुश्किल है. And it would be gradual as well, but we need to work. We need to start working from today. Exactly, we need to start working from today. That charity begins at home. Exactly. घर से शुरू होती है. अगर हम लोग घर से शुरू करें, एक घर से एक बदलाव की शुरुआत करें, तो इंशाल्लाह होप तो यही है कि सोसाइटी भी एक दिन चेंज जरूर होगी, एक बेहतर दुनिया बसेगी. मैम कोई शॉर्ट मैसेज आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं हमारी ऑडियंस तक, so that क्या पता इस
जो आज का पॉडकास्ट है इससे किसी इंसान को ऐसी मैसेज मिले, एंड क्या पता कि हम ट्रांसफॉर्मेशन के बायस बने लोगों के लिए। मेरा बस एक ही मैसेज है मेरे लिसनर्स के लिए, दैट उम्मीद का दामन कभी ना छोड़े। उम्मीद पर दुनिया कायम है। अपने घर की लड़कियों पे भरोसा करना शुरू करें, क्योंकि एक स्ट्रिक्ट माहौल में ही एक बहुत अच्छे लायर्स पैदा होते हैं। तो लड़कियों पे भरोसा करें, उन्हें थोड़ी सी छूट दें कि वो एक बाहर की दुनिया में कदम रखें और एक्सप्लोर करें, थोड़ा बहुत इंडिपेंडेंट बन जाए। और लड़कों पे भी थोड़ी सी लगाम कसने की ज़रूरत है। जितना स्ट्रिक्टनेस हम लोग लड़कियों पे लगाते हैं, अगर उसका हाफ भी लड़कों पे लगता है तो शायद ये दुनिया थोड़ी सी बेहतर जगह बन जाए रहने के लिए। बिल्कुल। And there is, I have quoted, I am a child, don't mutilate me. I am a bird, don't crumble over me. I am the one who is being denied from rights. I am the one who has no childhood to relish. Brutality and tyranny ensuing with me, still hushed who will raise voice for me. I tantalize for the school that I can't see. I lost my childhood who led me free. Heart-wrecked and tiresome am I. I yearn to play sports like others, but I can't. Why? Emancipate us from the shackles of brutality. Oh, humans, in any way show your humanity. Ma'am, thank you so much for marking your effulgent presence here. And once again, happiest birthday to you. Thank you so much. Thank you so much for having me. Thank you. Till then, take care of yourself. Allah Hafiz. Allah Hafiz.